I begin in the name of gracious God, the merciful, the beneficent. Hi dear students, how are you? Today we are going to start kinds of pronoun. Very much important thing in English basic grammar concepts. Kind of pronoun. Parts of speech में noun के बाद next thing is pronoun. Pronoun means any word used at the place of noun or for example replacing noun. जैसे हम कहते हैं Ali is a good boy, he is my friend. दोबारा Ali यूज नहीं करेंगे, दोबारा आप उसकी जगह पर pronoun यूज करेंगे. So he will be used there as pronoun. So this is a pronoun. Okay. Now there are kinds of pronoun. Many kinds of pronoun. Again, the stress will be on very important and basic one. उन प्रोनाउन के काइंड को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो एग्जाम में बार बार आ रहे हैं ताकि आप उनको समझ सकें. अदरवाइज इन सम ग्रामर बुक्स so many kinds of pronouns have been described. Right now, see here. The first kind of pronoun is personal pronoun. First is personal pronoun. सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल है. As a word shows person, it means personal pronouns are used for persons. इस्तेमाल होते हैं persons के लिए. One among them that is it. ये यूज होता है persons के लिए भी, things के लिए भी. That's why it is said that personal pronouns are for persons and things. But main focus is towards the person. मेन इसका इस्तेमाल है, इस्तेमाल होते हैं पर्सनल प्रोनाउन पर्सन्स के लिए. फर्दर इन पर्सनल प्रोनाउंस के आगे तीन मेन इस्तेमाल हैं, तीन मेन इनकी कैटेगरीज हैं. फर्स्ट इज सब्जेक्ट, काम करने वाला. ऑब्जेक्ट सेकंड, जिस पर काम हो. और पोजेसिव, मलकियत. सब्जेक्ट में वी हैव आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे. These are used as subjects in personal pronoun. Then next is object. Object में I के लिए object me, we के लिए us, you के लिए you है. You का subject भी you, object भी you. Then for he, him, for she, her, it के लिए it. Just like you, ये भी same है, subject and object. And then they का object, them. नेक्स्ट पोजेसिव, मलकियत. आई के लिए नॉर्मली माई एंड माइन, वी के लिए आवर एंड आवर्स, यू के लिए योर एंड योर्स, ही के लिए हिज, शी के लिए हर एंड हर्स, ही के लिए नॉर्मली वी यूज हिज, ओके, हिज एंड देन हर, हर्स. इट के लिए इट्स, दे के लिए देयर एंड देयर्स. सो ऑल दीज आर personal pronouns for the subjective and objective. And then the last one, possessive. Possessive में you can see यहाँ दो लिखे हुए हैं, my and mine, our and ours, your and yours. इसमें ये है कि जो my है, our है, your है, her है, their है, ये normally यूज होते हैं as a possessive एडजेक्टिव के तौर पर. जब इनके साथ नाउन अटैच हो जाएगा देन दीज विल बी कॉल्ड एडजेक्टिव्स. सो दीज आर आल्सो कंसीडर्ड एज एडजेक्टिव्स, राइट. सो पोजेसिव प्रोनाउंस एंड देन एज वेल एज पोजेसिव एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आवर कंट्री, नो आवर इज पोजेसिव एडजेक्टिव. हर बुक, हियर हर इज यूज्ड एज along with the book, so it is considered possessive adjective. The next thing is distributive pronoun. Distributive pronoun means distribute करना. ये normally at one time one subject को indicate करते हैं, right? They refer one thing, one person at one time or one noun at one time. ज़्यादातर इसमें इस्तेमाल है each का, every, either and neither. For example, if I say each of them is a good student, कि उनमें से हर एक
अच्छा स्टूडेंट ही, राइट. नाइदर ऑफ देम वॉज एब्सेंट. उनमें से हर कोई जो है वो अलग अलग बात करते हुए कोई भी उनमें से एब्सेंट नहीं था. सो दैट्स वाई सिंगुलर, आगे आप वर्ब भी देख सकते हैं, सिंगुलर यूज किए जाएंगे. सो दीज आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. देन द नेक्स्ट वन इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रेफर करते हैं नेक्स्ट नाउन को. दे रेफर टू नेक्स्ट नाउन. Normally these are this, that, these and those. This, that, these and those. For example, if you say that this is my book. This is my book. So here you are looking, this is referring to my book. That is her book. That is referring to her. So these are called demonstrative pronoun. राइट. सो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अगर 7 नाउन अटैच हो जाए, फॉर एग्जाम्पल इसी सेंटेंस को अगर हम लिखते हैं दिस बुक, तो देन दिस एडजेक्टिव बन जाएगा. बिकॉज वेरी सिंपल भी कि व्हेन एवर समथिंग अटैच्ड विद अ नाउन दैट बिकम्स एडजेक्टिव, राइट. तो ये जो 4 प्रोनाउंस हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं. जब हम एडजेक्टिव की वीडियो में देखेंगे, सो यू कैन सी दैट दीज विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज एडजेक्टिव्स. बट जब ये रेफर कर रहे हो आगे नाउन को, दिस, दैट, दीज और दोज, दीज आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. द नेक्स्ट वन इज रिलेटिव प्रोनाउन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, द वर्ड शोज रिलेट करना. These are going to relate अपने से पिछले वर्ड को. वर्ड विच कम्स बिफोर देम दैट इज कॉल्ड एंटीसीडेंट. ये अपने एंटीसीडेंट को रेफर करते हैं, लिंक करते हैं, रिलेट करते हैं. सो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन. ज़्यादातर जो इस्तेमाल होते हैं वो हैं हु, विच एंड दैट. हु, विच एंड दैट, दीज आर द नॉर्मली यूज्ड अ लॉट रिलेटिव प्रोनाउंस. डिफरेंस क्या है? हु नॉर्मली यूज करते हैं हम ह्यूमन बीइंग के साथ, हु विद ह्यूमन बीइंग. विच यूज करते हैं एनिमल और थिंग्स के साथ, जबकि दैट सबके साथ इस्तेमाल होगा. फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं द बॉय हु गॉट प्राइज इज माई फ्रेंड. अब क्या है, बॉय के लिए अपने क्या लिखा? हु लिखा. यू वोंट राइट विच. You can write that, but not which, because which use करते हैं animal और things के साथ. Who with human being, that can be used anywhere or everywhere as a relative pronoun. So यहाँ आप देख रहे हैं कि that जो है अगर तो आगे noun को रेफर करेगा तो ये demonstrative pronoun, और अगर पिछले नाउन को रिलेट करेगा तो देन दिस इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन. सो वेरी मच इंपॉर्टेंट आप देखें दैट का इस्तेमाल कैसे हुआ है. दैट रिलेटिव प्रोनाउन भी है और दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव भी है. डिमॉन्स्ट्रेटिव में नेक्स्ट दैट इज माई बुक, सो ये क्या बन जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव. और अगर हम लिखते हैं द बुक दैट आई बॉट यस्टरडे, अब ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन. Right? The next one is indefinite pronoun. As the word shows, indefinite, not something definite, not something specific, not something particular. Right? इसमें जनरल बात करते हैं, कोई मखसूस पर्टिकुलर बात नहीं करते हैं. लाइक anybody, anyone, anybody, कोई भी शख्स, anyone, someone, somebody, one. So all these are called indefinite pronoun. All right. Anyone will help me. So कोई भी क्या मेरी हेल्प करेगा. So this is called आपके पास से indefinite pronoun. Next आइए interrogative pronoun. As the word shows, asking question. Interrogative pronoun क्या है? ये question ask कर रहे हैं, इनसे question पूछा जा रहा है. For example, these are the interrogative pronoun. What, when, which, who, why, how, whose, whom, all these are called interrogative pronoun.
या ख्याल रखना है आपने ख़ास तौर पर हु के लिए और विच के लिए, बिकॉज हु और विच रिलेटिव प्रोनाउन भी हैं, राइट। जब एंटीसीडेंट को पिछले वर्ड को रिलेट करें, लिंक करें तो रिलेटिव, जब क्वेश्चन करेंगे तो देन इंट्रोगेटिव। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से हु आर यू, अभी क्वेश्चन है, नो दिस इज नॉट रिलेटिव प्रोनाउन, राइट। लेकिन जब रिलेट करेंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन। सिमिलर केसेस आल्सो विद द विच, द बुक विच आई बॉट यस्टरडे was lost, right। अब क्या है which, relative pronoun। बट अगर आप कहें in which class do you read, अब क्या है which, interrogative pronoun। so 6 kind। then 7th one is a reflexive pronoun। reflexive pronoun, what is a reflexive pronoun? जो एक्शन को सब्जेक्ट की जानिब रिफ्लेक्ट बैक करेगा, और reflexive pronoun is going to reflect back the action, right। for example देखते हैं हम reflexive pronoun में ज़्यादातर क्या है, I के लिए myself, we के लिए ourselves, you के लिए yourself, he के लिए himself, she के लिए herself, it के लिए itself, और they के लिए themselves। so these are called reflexive pronoun, जब ये एक्शन को रिफ्लेक्ट बैक करें towards subject। फॉर एग्जाम्पल हम सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पर एक, he solved the sum himself, he solved the sum himself। so you're looking, himself is reflecting back the action towards he, तो ये himself क्या होगा, this is called a reflexive pronoun, right। कि सॉल्व द सम, किसने सम सॉल्व किया, ही ने। सो हिमसेल्फ रिफ्लेक्टिंग बैक टू ही, शी सॉल्व द सम हर सेल्फ, सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। द नेक्स्ट इज एम्फेटिक। सेम यही प्रोनाउन जो रिफ्लेक्टिव है, दीज आर आल्सो कंसिडर्ड एम्फेटिक प्रोनाउन। मेन क्या है एम्फेटिक में, स्ट्रेस करते हैं एक्शन पर, या स्ट्रेस होता है वहाँ रिफ्लेक्ट बैक, क्लियर। सेम वही माई सेल्फ, अवर सेल्फ, हिमसेल्फ, यही सब क्या है जब स्ट्रेस कर रहे होंगे तो दीज विल बी कंसिडर्ड एम्फेटिक। अदरवाइज जब रिफ्लेक्ट बैक कर रहे होंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल देखते हैं, इसी सेंटेंस को देखते हैं, ही सॉल्व्ड द सम हिमसेल्फ इंस्टेड ऑफ दैट। अगर हम लिखते हैं ही हिमसेल्फ, he himself solved the sum, कि उसने सवाल खुद किया। no this is emphasizing, no this is stressing on the action, he himself solved। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, emphatic pronoun। normally these are the 8 kind of pronoun जिनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारे पास एग्जाम्स में, बट देयर आर सम मोर। फॉर एग्जाम्पल उनमें से हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, RECIPROCAL, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये नॉर्मली आपस में या दरमियान, मतलब फॉर एग्जाम्पल टू फ्रेंड्स, टू के लिए हम ईच अदर लिखते हैं, और जब 2 से ज़्यादा होंगे तो वन अनदर। रेसिप्रोकल में नॉर्मली वी हैव 2, one each other and then one another, each other and then one another, so one and other। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं अली एंड अहमद हेल्प, 2 की बात है तो क्या लिखेंगे, ईच अदर, अली एंड अहमद हेल्प ईच अदर। बट अगर हम 3 सब्जेक्ट ले लें या 3 से ज़्यादा हो जाए या ज़्यादा लोगों के बीच बात हो जाए तो फिर आपस में या दरमियान के लिए या बिटवीन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वन अनदर। अली अहमद एंड जिया हेल्प वन अनदर, नॉट ईच अदर, राइट। सो दीज आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन्स। Then another pronoun, that is quantitative pronoun, as the word shows, quantity, clear, quantitative pronoun, right। The next is quantitative, QUNTITATIV, quantitative pronoun।
Normally, quantity like few, like many, many of them were not present. उनमें से अक्सर प्रेजेंट नहीं थे. So many is here. What is that? Quantitative. आप काउंट कर रहे हैं. Few काउंट कर रहे हैं. Little काउंट कर रहे हैं. So all these are called quantitative pronoun. There are some more kinds, but these are the 10 kinds used a lot in our spoken English, written English, and also these are very much important as far as exam is concerned. इनमें से खास तौर पर हमारे एक तो पर्सनल प्रोनाउन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, then the relative pronoun, and then here emphatic pronoun and reflexive pronoun. So stress especially on these. Anyhow, all these 10 kind of pronouns are very much important as far as the basic English grammar is concerned. Thanks.